वरुण जी पूछ रहे हैं कि प्लीज टॉक अबाउट द नेसेसरी एक्सपीरियंस in the beginning stages of Vishranti Bindu. Yes, the first fundamental experience is that you are able to feel the sensations in between the tip of your fingers. These sensations should be felt even if you take the fingers apart. Even if there is a physical distance between the fingers, you are able to feel the sensations. So it is very necessary. Once you catch hold of those sensations in between your fingers, then you should be able to stabilize it or increase it at least. Now, this particular sensation which you are feeling, even if you try right now during this meeting, you will be able to feel that this will sometimes increase, this will sometimes disappear, this will sometimes decrease also. Now, why is that? Your lifestyle will be having an influence on the experience of these sensations. Now, your sensations uh, are very dynamic, they are very alive, they are always in the present moment, and these sensations have a varying degree of experience associated with them. Now, as you go on feeling or experiencing these sensations for more number of times, what will happen to you is after 3 months of sadhana, even if you are walking and I tell you go into your sadhana, you will be immediately able to feel the sensation between your fingers, which means you will come into your present moment and you will be in touch with your life energies. So, this is the necessary experience. You need to get stabilized in your sensations between the fingers. You need to feel them. You need to feel the dance of these sensations, what they are, little more familiarity with them. In past, many people have not explored their life energies, and by doing this practice you will be able to come in contact with your life energies, and these life energies will give you every information related to your own life from within you only. So this necessary experience was the only thing in beginning stages. This beginning is very small but it will continue till the end. So it is a very brief summary, Varun. If other than that you want to ask, I'll be happy to help. You can write down your question or you can unmute yourself and speak. Is there anything more you want to ask? Hello. That is all I wanted to ask because there are many kinds of sensations, and I do not know if they are due to my hand being numb or are they truly the sensations I should be feeling. Yes, one sensation is the physical touch of the skin that you feel. That is definitely not the sensation. It is an alive thing. It is like a river flowing, like something moving from this hand to that hand. It may feel like it is moving from this hand to that hand, but it is non-physical. It is not physical. Understand this thing. That is a type of flow that is happening within you. That is why if you eat the heavy food, the feeling or experience of these sensations will go down. So the experience of these sensations will differ from moment to moment. Now, if you watch other videos of that step 1, the beginning practice, you will come to know that there are many people, like Kumar also said in today's satsang, that they are not able to feel the sensation sometimes. There are people who do not even feel the sensations because they have been consumed by their life. They have walked into bad paths, bad habits. They are not even to able to feel the sensations. So for them I have downgraded the practice a bit and have told them that you just remain with the physical touch. Okay.
otherwise just feel your sensations, get stabilized in them. That is more important. In 24 hours, whenever I ask you, let's say if I am there, whenever I ask you ki be in touch with your sensations, you should be able to feel the sensations. This much is the necessary experience I want as an outcome from your 3 months practice. Now after that, there is advanced sadhana which cannot be done without getting stabilized in this beginning experience. That is why it is very, very important. Okay. Okay. Right now, I focus mostly on the physical, and then when I create a graph between the fingers, I feel something is there in between. I mean, it is not numbing of my hands because I try to move my hand and see the numbing goes away, but the sensation still remains, though very faint. Though. Okay. Yes, that is good. See, whenever we are not able to feel the sensations, we can go back to the physical touch. Once the physical touch is will be deepened, the flow of the sensations will come after some time. That is the only thing. Okay. That is the only thing. कोई भी क्वेश्चन है या कोई जनरल डिस्कशन का कोई टॉपिक है, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं. सत्संग शब्द का मतलब तो गूगल वगैरह करके देख सकते हैं आसानी से, बट सीधा साधा तो सत्य और उसका संग किनका होता है, मोर देन वन पर्सन. तो जो एसोसिएशन होती है, जो कंपनी होती है, उसे संघ कहा जाता है. तो जो लोग सत्य के रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, उनकी जो कंपनी है, उनके साथ बैठने को सत्संग कहा जाता है. अलग अलग और भी डेफिनेशंस तो आप लोग गूगल वगैरह करके देख ही सकते हैं. पर इसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ना, कहीं से भी आदमी कोई ज्ञान लेता है तो वो उसमें अपना ज्ञान भी भर लेता है. कई बार वो अज्यूम करने लग जाता है. मान लो किसी ने एक लाइफ एजुकेशन किया, जीवन के बारे में कोई ज्ञान लिया, उसमें कुछ ना कुछ अज्ञान आदमी इकट्ठा कर ही लेता है. तो सत्संग में होने से जब आप खुद को प्रकट करेंगे तो आपके जीवन का स्तर और अज्ञान दोनों प्रकट आसानी से हो जाएगा, जो कि बाहर दुनिया में आपके दोस्तों के बीच में बड़ा मुश्किल है. जैसे जो बिजनेस वाले लोग हैं, उनके बीच में बैठेंगे तो आपको ये पता लगता रहेगा कि आप बिजनेस कहाँ ठीक नहीं कर रहे हैं. ऐसे ही सत्संग में या मीटिंग्स में जो लोग सत्य के साधक हैं, उनके बीच में बैठ के आपको ये पता लगता रहेगा कि जीवन में हम कहाँ मार खा रहे हैं, किस आपकी दिशा. प्रणाम रहे. तो आपकी दिशा हमेशा चेक होती रहेगी, रिव्यू होती रहेगी. तो सत्संग का इतना सा सिग्निफिकेंस है. सबसे आसान तो उसमें आगे बढ़ जाए. ऐसा होता ही है. जैसे मैं आपको प्राणायाम दे दूं, मैं आपको मंत्र की साधना कोई दे दूं, आपको कावड़ लाने को बोल दूं, हजारों साधना संभव है. पर आपका जो सिस्टम है, जो आपका शरीर है, मन है, ऊर्जाएं हैं, जो आपके अंदर के शरीर हैं, वो किन चीज़ों के प्रति अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, वो बिल्कुल आपके सिस्टम पे डिपेंडेंट है. जैसे आप वीबी की साधना कर रहे हैं, वीबी की साधना में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस साधना में आते ही उनको ऐसा लगता है कि हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे. ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं
कि इस साधना में इनिशिएशन लिया तो वो जहाँ भी बैठे हैं उनको वहाँ बैठे बैठे ऑर्गेजम्स होने लग गए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी लोग हैं वीबी में जो साधना कर रहे थे और उनको ऐसा लग रहा है कि हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। अब एक आपका उनमें से एक केस है जो कह रहे हैं कि मुझे हो रहा है पर उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा, या इस तरह की चीज़ें हैं। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है ना, तो वीबी की जो साधना है ये अपने आप में इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे आपको ये साधना 3 महीने के लिए करने के लिए कही गई है। ठीक है, वो 3 महीना ना एक एवरेज टाइम है। कोई आदमी साधना में स्टेबल 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है। किसी का स्तर बहुत ज़्यादा है तो जो एडवांस है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एडवांस हों। अब जो 3 महीने बाद वाली साधना है उसमें आपका इंटरेस्ट एकदम आए, क्योंकि इंटरेस्ट तो चलने में आएगा ना। जैसे वीबी में क्या आप स्थिर हो गए हैं उस अनुभव में? नहीं मतलब मैं कैसे और इसमें इसका कुमार जी देखिए सीधा सा है। आपका जब ये अनुभव कम हुआ ना तो आपके माइंड ने इसको बोरिंग क्वालिटी दे दी। जैसे आप एक चीज़ देखिए, आप अपने अनुभव पे ध्यान रखिए। ये अनुभव तो बहुत मीठा सा अनुभव है, आपने देखा है कुमार जी? हाँ ये बहुत मीठा सा अनुभव है। ऐसे अनुभव रहता है जैसे कोई नदी बह रही है। नदी नहीं, उसमें वाइब्रेशन से फील होती है। वाइब्रेशन से फील होते हैं। आप मुझे बताएं, क्या आपके पूरे शरीर में फील होती है, हाथ में फील होती है, या सिर्फ उंगलियों में होती है? मैं शरीर के जिस अंग पे थोड़ा सा कॉन्शियसली ध्यान करता हूँ तो उस अंग पे फील हो जाती है। नहीं, मेरा आपसे सवाल दूसरा है। मैं कह रहा हूँ जब आप उंगलियों के माध्यम से ये करते हैं तब और शरीर के किस हिस्से में आपको महसूस हो रहा होता है? हाँ, तो अभी आपका सूरज थोड़ा कम है ना, इस सूरज को बढ़ाइए। 3 महीने उसी लिए दिया गया है, इससे जान पहचान पूरी बनाई है। अभी आपने इसका घटना बढ़ना तो देखा है ना? हाँ। आपने ये भी देखा कि आप जो अलग अलग खाना खाते हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, ये चीज मैंने ऑब्जर्व नहीं की। तो इसीलिए 3 महीना दिए गए हैं। आप उस अनुभव के साथ रहेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ पता चलेंगी। आप इसको ओशो की बात से समझ लीजिए। जैसे ओशो कह रहे थे ना कि अपने प्राणों को पढ़ो, तो अपने प्राणों के पहले टच में तो आओ, उसको पढ़ोगे तो बाद में। आप तो कुमार जी ये कह रहे हैं कि आप अपने प्राणों के संपर्क में आए और फिर बोर हो गए। ऐसा इसका मतलब आपके प्राण में ऐसा क्या है वहां जहां बोर हो गए? प्रणाम हिमांशु जी। तो कुमार जी, आपके प्राणों में इतनी बोरियत है क्या? पढ़ने में पता चलेगा तो टच में है। हाँ, तो उसके साथ रहिए। उसमें पढ़ने को इतना कुछ है कि आपका ये सारा जीवन निकल जाएगा। ठीक है, वो साधना कोई बच्चों वाली साधना नहीं है, वो बहुत एडवांस साधना है। लेकिन उसको आपको धीरे धीरे करके डाइजेस्ट कराया जा रहा है। देखिए, विश्रांति बिंदु की साधना ऐसी है, कोई व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, उसका पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर उस साधना में चल रहा है। अभी तो इसके एडवांस कक्षाएं अभी शुरू ही नहीं हुई हैं। एडवांस कक्षाओं में तो बहुत कुछ है, वहाँ तो इसके इतने स्तर हैं इस साधना के कि बहुत ज़्यादा।
और आपका जहाँ तक स्तर होगा वो पता लग जाएगा आपको भी। तो आप इसे करते रहिए। जी जी, ठीक, धन्यवाद जी। ये साधना आपसे बड़ी है, ये साधना आपके अहंकार से भी बड़ी है। तो आप तो अभी खुद को इससे बड़ा महसूस कर रहे हैं साधना से। थोड़ा सा लेवल में आ जाइए, थोड़ा इसको अपना काम करने दीजिए साधना को। आप तो हिट एंड रन में मत जाइए साधना के साथ, थोड़ा सा बिताइए इस साधना के साथ, समय बिताइए। जी और आपका जीवन ऊपर नीचे होगा ना, तो साधना का गुण भी ऊपर नीचे होता रहेगा साथ में। देखिए, इस साधना की सबसे वीबी की साधना की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें एक बार अगर आपको अच्छे से निर्देश समझ आ गए, फिर गुरु की ज़रूरत बहुत कम है। आप खुद ब खुद प्रगति करते रहेंगे। मैं आपको अगर इसमें 6 महीने के बाद गाइडेंस नहीं दूंगा तो आप बाकी का जीवन अपने आप उसको ले पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि सभी के जीवन का जो चार्ट है वो तो बराबर है ना, वो तो एक जैसा ही है। आपने खुद को जाना, दूसरे को जाना, एक ही बात है। लाइब्रेरी में जो स्तर हैं, शेल्फ हैं, वो उतने ही हैं। उसके अंदर किसने किताबें कैसे रखी हैं, बस उसका फ़र्क है। तो जो वीबी की साधना के इतने स्तर हैं, अभी आप इसमें कुमार जी, अभी आपने एंट्री नहीं की है। आप इसको 3 महीने अच्छे से इसमें ठहरना सीखें, इसमें स्टेबलाइज हो जाए। अगर ये वीबी आपके लिए पाथ नहीं होगा तो ये आपको साधना खुद ही बता देगी कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। हाँ, तो सारी साधनाएं सबके लिए होती भी नहीं है। मैं इसीलिए तो पिछले मीटिंग्स में मैं कह भी रहा था, सबके लिए ज्ञान मार्ग नहीं है भाई, सबके लिए नहीं है। देखिए, इसमें जल्दबाजी इतनी है कि सब लोग किसी आध्यात्मिक पाथ पे जाना तो चाहते हैं, उनको अपने साथ रहने को जब कहा जाता है तो ज़्यादातर आदमी वहाँ से भागने की ही कोशिश करेंगे। उसमें चाहे मैं अगर खुद की भी बात करूं, जब अपने प्राणों को बहुत गहरे से पढ़ने की जब कोशिशें की थी बहुत पहले, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर इस तरह का कंटेंट भरा होता है, आपके पूर्व जन्मों का भी, इस जन्मों का भी, कि आप डर जाएंगे। ज़्यादातर बहुत कुछ भरा होता है अंदर। तो अपने प्राणों को जब आप ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो उसमें ऐसी चीज़ें भी दिखेंगी जो आप खुद को वैसा देखना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि हमारे आज की मीटिंग में भी जितने लोग हैं, सबकी छवि खुद के प्रति तो बहुत अच्छी है ना। सब तो, ज़्यादातर लोग तो खुद को बहुत अच्छा ही मानते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरा ऐसा शरीर अच्छा है, मेरा तो दिमाग भी अच्छा है, मेरे घर वाले भी अच्छे हैं। जी जी, हाँ जी। लेकिन आप जब अपने प्राणों को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आपके पशु के भी दर्शन होंगे। हाँ, सही बोला आपने। पशु के भी दर्शन। वहां स्वीकार करने में ज्यादातर लोगों की बैंड बज जाती है। जैसे यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, खुद को क्या कोई मर्डरर कभी सोच सकता है कि मैं हत्या का विचार मेरे मन में आ सकता है? अगर आज ग्रुप में जितने लोग हैं अभी मीटिंग में, इनमें से कोई बताएगा किसी को कभी हत्या करने का विचार आया है या सुसाइड करने का? हाँ, बिल्कुल आया है, मुझे आया है, आना भी चाहिए। और इसके लिए मैं एक विशेष वो साझा कर देता हूँ कि वैसे तो मुझे बहुत कम क्रोध आता है और स्वभाव से बहुत शांत हूँ, पर जब आता है तो फिर वो पशुता की बहुत सीमा को लांघ जाता है। और मेरे जीवन में 2-3 ऐसे किस्से हो चुके हैं जब या तो सामने वाला नहीं था या मैं नहीं था, इसलिए मैं बहुत नियंत्रण रखता हूँ।
तो हाँ, ऐसा है, बिल्कुल है। हाँ, हमको पशु देखने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है। हमारे खुद के स्वभाव में पशु, रोज के स्वभाव में पशु दिख जाता है। लेकिन लेकिन अगर सत्संग में आपकी अगली बार सत्संग में आए तो सबको हर बार अलग जानवर से पुकारें, जैसे अब की बार बोलें कि आओ कुत्तों सब बैठ के मीटिंग करते हैं, तो काफी लोग नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो मुझे लगता है ऐसे शायद थोड़ा शिष्टाचार या फिर सामाजिक उसके संदर्भ में आ जाएगा। पर ठीक है, जिसको समझ में आया है वो नाराज नहीं होगा, पर शायद उसको स्वीकार नहीं करे। वो स्वीकार यही बात है। स्वीकार हाँ, करना स्वीकार करना या ना करना भी सिखाया गया है ना। जैसे पशु में भी कुत्ता या सूअर किसी को पसंद नहीं है, पर मोर सब लोग बनना चाहेंगे। नहीं, मेरा तो पशुकरण हो चुका है कॉलेज के टाइम से, क्योंकि मैं बहुत मोटा हुआ करता था। अच्छा, और मेरी चाल भी बहुत मतवाली थी, तो मुझे गजराज बुलाया जाता था। तो मेरा पशुकरण हो चुका है। लेकिन अपने प्राणों में जो पशुता है ना, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लो आपके परिवार में आपकी मान लो चाचा या ताऊ से ही लड़ाई हो गई, ठीक है। तो और आपका मन 1 महीने से ये कर रहा है, ऐसे प्लानिंग कर रहा है कि मैं कैसे अपने चाचा को मार दूं, कैसे अपने ताऊ को मार दूं। ऐसा होता है मन में। तो मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ इस बात पे। लेकिन आदमी उस चीज को बाहर कभी ना तो दिखा सकता, ठीक है। तो अगर जब आदमी एक, अब चाचा उसके सामने है, अगर ताऊ सामने आ गया और आपके प्राण चिल्ला के कह रहे हैं कि इस आदमी ने ऐसा ऐसा करा है और इसको मारना है, उस स्थिति में भी आदमी ये कहलवाना पसंद नहीं करेगा कि मैं पशु हूँ, मैं किसी को मारना चाहता हूँ। वो हमेशा उसका एक रैशनलाइजेशन ऐसा ढूंढेगा कि इसने ये दिक्कत करी इसीलिए इसको ऐसे मारना उचित था। मैं ठीक हूँ, मैं पशु नहीं हूँ। तो अपने मैं कुमार जी को इसलिए कह रहा था, अपने प्राणों को पढ़ने के लिए बहुत साहस चाहिए, बहुत ज्यादा साहस चाहिए। उसमें बहुत कुछ है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अगर सत्संग में अगर यहाँ बोलने लगे तो अगर यहाँ मान लो कोई शिष्टाचार वाले लोग हैं, वो तो भाग ही जाएंगे। और यूथ फाउंडेशन में हम लोग ज्यादा शिष्टाचार की चिंता तो करते नहीं है। यहाँ सत्य के बारे में कितना भी गहरा डिस्कशन हो सकता है। यहाँ संयम वयम कुछ नहीं सिखाया जाता। यहाँ संयम असंयम दोनों है। ये यूथ फाउंडेशन की जो मीटिंग्स होती हैं, ये ऐसे हैं जैसे फॉरेस्ट की मीटिंग्स होती हैं। हर तरह के पौधे हैं, बिल्कुल रैंडम है, कोई ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फंडामेंटल है। फंडामेंटल से हम बात कर सकते हैं किसी भी विषय में। तो अगर कोई ध्यानी, अब वो देखिए इसका कुमार जी मैं आपको महत्व बताता हूँ, बाद में कभी काम आएगा बाकी लोगों के लिए भी। जब आदमी अपने प्राणों को पढ़ लेता है, अपने प्राणों की गंदगी और अच्छाई दोनों को पढ़ लेता है, तो करुणा पैदा ही वहीं से होती है। एक चोर के प्रति आप प्रेम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने अपने अंदर का चोर नहीं देखा है, इसीलिए। जब आप अपने अंदर की गंदगी पढ़ लेंगे ना, तो आप फिर दूसरे की गंदगी को स्वीकार कर लेंगे। शिष्टता के बिना बैठक का कोई औचित्य नहीं। हिमांशु जी, यहाँ तो देखिए फायर वाले, मैं सीधा कहूँगा, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं कहना चाहूँगा। शिष्टता और अशिष्टता दोनों ही है। एक तो खासकर इन मीटिंग्स में तो हम लोग मतलब आपको अगर ठीक लगता है तो आप रहिए शिष्टता के साथ, आपको कोई ये नहीं कह रहा है आप अशिष्ट हो। लेकिन मैं यहाँ मीटिंग में ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपके साथ अशिष्टता नहीं होगी। वो आपको अपने मन पर नियंत्रण आपको देखना पड़ेगा कि आपका अपने मन पर कितना नियंत्रण है। कि आपके साथ अगर कोई अशिष्टता कर भी रहा है, आप फिर भी हंस रहे हैं, तो वो आपकी चॉइस होनी चाहिए। यहाँ पर
जो जो जीवन पे जो मास्टरी की बात है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मैं आऊंगा इस बात पे हिमांशु जी, इसमें गहराई से बात करेंगे। मैं उससे पहले दूसरी बात आपको कह रहा था कि जब हम अपने प्राणों की गंदगी पढ़ लेते हैं तभी दूसरे पे करुणा अपने आप आ जाती है। फिर आप चोर को चोर कैसे देख पाएंगे जब आपके अंदर भी चोर था? समाज में इतने सारी उल्टी सीधी चीजों के लिए कानून बने हैं, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, न्यायिक संहिता, ये सब बने हैं। तो ये सब आदमी के अंदर का कंटेंट है, उसी के लिए तो ये बने हैं नियम, और किसके लिए बने हैं? भाई आदमी चोरी भी कर सकता है, आदमी मर्डर भी कर सकता है, आदमी रेप भी कर सकता है, आदमी पता नहीं चप्पल भी मार सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है, बच्चों को कुछ कुछ कर सकता है। बच्चों का मांस तक खाने वाले लोग इस संसार में हैं। इस संसार में अगर अच्छाई की हाइट्स है तो उसकी पशुता का बॉटम भी तो है। तो जो पशुता का बॉटम है और सारे संसार के प्राणों की जो झलक है वो आपके अंदर ही है। सबसे अच्छी चीज़, अगर सारे संसार को भी आपको पढ़ना है तो वो आपके अंदर है सारी झलक, ठीक है। तो आप ही सारा संसार हुए। अगर आप ही सारा संसार है तो जो बहुत निम्न है वो भी आप हुए, और बहुत निम्न जब आप हैं तो आप दूसरे के प्रति बहुत करुणा से अपने आप ही रहेंगे। फिर आप चोर से नफरत नहीं कर पाएंगे। वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। तो ये बाद में कभी काम आता है। अभी तो प्रेम, यूज फाउंडेशन में प्रेम और सेक्स से आगे की ये तो विषय हैं, ये सब जो करुणा वरुणा और ये सब है। तो पहले साधकों के अंदर प्रेम आ जाए उतना ही काफी है। तो आगे चलते हैं। उनका कहना ठीक है, उनका अपनी जगह उनका कहना ठीक है, लेकिन लाइफ में कोई गारंटी नहीं है कि मीटिंग में शिष्टता होगी। मैं कम से कम इस मीटिंग में गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ सबके साथ शिष्टता होगी। कई बार ऐसी मीटिंग एक रख लेंगे जिसमें सबकी शिष्टता को भंग ही कर देंगे। मैं प्रतीक जी की इस बात के थोड़ा सा मतलब समर्थन में कहना चाहूंगा कि उनका जो भाव है शिष्ट या अशिष्ट, जो हम विशेषतः शब्दों को लेकर बोलते हैं, वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य यही है कि यदि किसी साधक में किसी विचार को, किसी मान्यता को लेकर कुछ विशेष अंदर से दबाव है, कुछ दबा पड़ा है, तो वो उस साधक का उस समय बाहर आ जाता है और फिर उस हिसाब से उसका कुछ उपाय या कुछ उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं। ऐसा मुझे उनका भाव लग रहा है। सही, यही है मेरा कहने का मतलब। आपके मन में कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। मन बिल्कुल ऐसे, आपका शरीर तो स्पेशल फोर्सेस की तरह हो और मन बच्चे की तरह होना चाहिए। ये बात हम कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई आपका जीवन बाहर से ऐसा होना चाहिए कि जैसे आर्मी के स्पेशल फोर्सेस वाले हैं, असीमित संभावनाएं, और मन आपका बच्चे की तरह हो जिसमें कोई बंधन नहीं है। क्योंकि मन में कोई भी बंधन होगा वो आंतरिक प्रिजन बन जाएगा ना। आप इस चीज को समझिए कि अगर आप मैं किस परिपेक्ष में कह रहा था ये सारी बातें, कि मेरे मन में कोई भी जेल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की जीवन के प्रति। उसका पूरा आप उसको जैसा है वैसा देख पाए, जैसा जीवन है, बहुत न्यूट्रल तरीके से। बस इतना मेरा भाव था उनको ये कहने के प्रति कि शिष्टता। और युज फाउंडेशन में तो बहुत सारी अलग अलग नदियां मिलती हैं, तो इतनी नदियों में शिष्टता कहाँ से लाएंगे, बड़ा मुश्किल है। पारुल जी कह रहे हैं ना ही कुछ अच्छा है ना ही कुछ बुरा है। इसका मतलब उन्होंने मन से अपने इन दो प्रोसेसेस को हटा दिया है, जो लाइक और डिसलाइक वाले प्रोसेस हैं। ये तो बहुत बाद में जाके छूटते हैं। पारुल अगर हैं तो मुझे बताइए, छूट गए क्या आपके लाइक और डिसलाइक?
इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इनको लाइक डिसलाइक को? सर लाइक और डिसलाइक कोई बताए? पसंद नापसंद और प्रिय अप्रिय। प्रिय। हाँ बिल्कुल। ये तो फिर मेरे हिसाब से जिसके ये दो मन की जो संभावनाएं हैं, जिसने इन पे नियंत्रण पा लिया, तो उसका तो जीवन का रास्ता फिर सीधा ही है। नहीं जी, साधु संतों का कहना है। अच्छा, संतों का कहना है। हाँ, ना कुछ बुरा है ना कुछ अच्छा है, वो बस ये कह रहे हैं बेचारे के अपने मन से इन दो पोजीशंस को हटा दो, कम कर दो, मतलब कि ना कुछ प्रिय है ना कुछ अप्रिय है, दोनों आपने ही थोप रखे हैं दूसरी चीजों पे। आप ही मन में प्रिय महसूस करते हैं, अप्रिय महसूस करते हैं, और वही दूसरे पे ले जाके उसको कोट टंगा देते हैं कि दूसरा अप्रिय है और दूसरा प्रिय है। लेकिन मीटिंग में इतने अच्छे लोग हैं सब, इस बारे में कोई ये बताएगा कि प्रेफरेंस का क्या संबंध है इस चीज से? क्या प्रेफरेंस लाइक और डिसलाइक में आती है? क्या जो मेरा प्रिय और अप्रिय की जो भावना रहती है मेरे मन में, प्रेफरेंस जो चुनाव है, उसका इन चीजों से क्या संबंध है, या वो अलग है इससे? क्योंकि प्रेफरेंस क्या करता है, आपका मन कहता है मैं एक चीज पे मैं कुछ चुनावों को अपना फेवर ज्यादा दे रहा हूं, कुछ अपने अनुभव को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैं ज्यादा महत्व दे रहा हूं, अपने पुराने अनुभवों के बेसिस पे मैं कुछ चीजों को ज्यादा महत्व दे रहा हूं, तो क्या वो लाइक और डिसलाइक में आएगा? क्वेश्चन तो थोड़ा सा यस। देखिए, प्रेफरेंस का लाइक डिसलाइक से एक तरह का सीधा संबंध है, क्योंकि जो एकदम ही मूर्ख व्यक्ति होगा वो वही प्रेफर करेगा जो उसको पसंद आता है। पर अगर थोड़ी बहुत बुद्धि काम कर जाएगी तो फिर सिचुएशन के हिसाब से वो प्रेफरेंस ऊपर नीचे कर सकता है, भले उसे कुछ चीज पसंद हो या ना हो। पर जो ज्ञानी है उसके लिए फिर पसंद नापसंद, उसको फिर पसंद नापसंद की जगह हम आवश्यक और अनावश्यक के रूप में ज्यादा बोल सकते हैं। वहाँ पसंद नापसंद का कोई ज्यादा औचित्य रह नहीं जाता, प्रेफरेंस का भी नहीं रह जाता जी, आवश्यक और अनावश्यक ही रह जाता है फिर। जया जी कह रहे हैं यस एब्सोल्युटली। जया जी, यस मतलब यू आर सेइंग के जो लाइक डिसलाइक है वो प्रेफरेंस के साथ क्लोजली रिलेटेड है, यही कहना चाह रहे हैं ना? जया जी, आप बोल के भी बता सकते हैं। प्रेफरेंस कम्स फ्रॉम ए माइंड पैटर्न विच इज बेस्ड ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यस, वो ठीक है, प्रेफरेंस बनती ही तभी है। लेकिन जब ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि लाइक और डिसलाइक से ऊपर उठ जाओ, तो क्या वो ये भी कह रहे हैं कि प्रेफरेंस करना भी छोड़ दो? प्रिया जी, सॉरी जया, जब ज्ञानी लोग ये कह रहे हैं लाइक और डिसलाइक से ऊपर उठ जाओ, तो क्या वो ये भी कह रहे हैं कि आप प्रेफरेंस करना छोड़ दो? क्या वॉच इट एज इट इज, अदरवाइज इट विल क्रिएट अनदर पैटर्न। सिंपल बताइए जया जी, थोड़ा सा सिंपल भाषा में, कि जो प्रेफरेंस है, ज्ञानी लोग क्या प्रेफरेंस नहीं करते हैं? ज्ञानी लोग क्या प्रेफरेंस नहीं करते हैं? लाइक डिसलाइक से ऊपर उठ जाते हैं ज्ञानी, ये बात सब बोलते हैं। जैसे पारुल ने भी बोला ना कि ज्ञानी लोग लाइक डिसलाइक से ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है।
तो क्या प्रेफरेंस से भी ऊपर उठ जाते हैं वो? ये हिमांशु जी आएंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप थोड़ा सा वेट करें, आएंगे उस पे। आप हिमांशु जी एक बार ये प्रेफरेंस पे थोड़ा सा आप विचार बताएं। जया ने कहा है नहीं। देखिए, प्रेफरेंस को कोई भी मना नहीं करता है। लाइक डिसलाइक जब बहुत इंटेंस हो जाते हैं तो वो आपको आपके जगत को ही दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, लाइक और डिसलाइक। आपका मन वहां टूट जाता है। मैं बस ये देख रहा था, कोई ज्ञान मार्गी हो तो कोई स्तर की बात कर लेता है इसमें, कि ज्ञानियों का ऐसा भी स्तर होता है जहां वो प्रेफरेंस को पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा तरीके से छोड़ देते हैं। और साधक जब तक मार्ग में है तब तक वो प्रेफरेंस उसको उसकी आवश्यकता है, उसकी नीड बन जाती है प्रेफरेंस। तो जब भी, और मैं ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, बहुत सारे साधकों को अपने जीवन में कुछ चीजें दबानी पड़ती हैं, मतलब कुछ चीजों जीवन से हटानी पड़ती हैं, तो वो प्रेफरेंस उनको करनी पड़ती है। कुछ ऐसे लोग हैं, अगर उनको जीवन से हटाना पड़े तो उनको हटाना भी पड़ता है, ये प्रेफरेंस उनको करनी ही पड़ती है, नहीं तो वो उनके मार्ग में बाधा बन जाते हैं, क्योंकि पौधा छोटा है। तो प्रेफरेंस साधक के लिए तो अनिवार्य है। जया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पे साधक के लिए प्रेफरेंस जरूरी है। और लोग इसको कंफ्यूज कहां से कर लेते हैं कि कृष्णमूर्ति ने जैसे कहा ना, चॉइसलेस अवेयरनेस। तो प्रेफरेंस और चॉइसलेस अवेयरनेस में भेद कभी आएगा एक दिन समझ में, जब चॉइसलेस अवेयरनेस आ जाएगी। इस प्रश्न पर ज्यादा उत्तर इसलिए नहीं अगर किसी के मन में ज्यादा उत्तर नहीं आ रहे हैं इस प्रश्न के प्रति, प्रेफरेंस लाइक डिसलाइक के प्रति, तो उनकी जब जर्नी कंप्लीट हो जाएगी तब इसका डिफरेंस समझ आएगा कि ये प्रेफरेंस है, लाइक है, डिसलाइक है, क्योंकि इस पे सारी जिंदगी टिकी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को लाइक करता है तो वो सीधा ये कह रहा है मैं इस चीज के साथ पॉजिटिवली एसोसिएटेड हूं ज्यादा, बजाय कि दूसरी चीजों के। मेरा माइंड इस चीज को ज्यादा फेवर कर रहा है, चूज कर रहा है दूसरी चीजों के प्रति। और जब किसी चीज को कोई डिसलाइक कर रहा है तब क्या हो रहा है, माइंड कह रहा है कि मैं इस चीज को पसंद नहीं कर रहा हूं। नेगेटिव एसोसिएशन माइंड कर देता है, उससे दूरी बनाना चाहता है, और वो उनके डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी है। आप देखिए, किसी लड़के के लिए अगर 5 लड़के सामने हैं तो उसको प्रेफरेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको करनी ही पड़ेगी। अगर उसके सामने 5 लड़के हैं, ऐसा ही लड़के के लिए भी है। तो ज्ञानी, लेकिन जो ज्ञानी होगा, जैसे पारुल कह रही थी, वो प्रिय अप्रिय से ऊपर उठ जाते हैं। ज्ञानी का क्या स्वभाव होगा, वो या तो 5 को पसंद करेगा या 5 को नापसंद कर सकता है। वो उन 5 में 5 को कभी नहीं तोड़ेगा बीच में से, और वो प्रेम का लक्षण है, वो प्रेम का लक्षण है। तो देखिए, लाइक और डिसलाइक तो माइंड का वो हिस्सा हो गया जो चीजों को 2 में तोड़ दिया जिसने, ठीक है। और प्रेम आपके जीवन की वो चीज है जो जोड़ देती है, या तो पूरा हटा देगी या पूरा जोड़ देगी। इसीलिए प्रेम आपका लाइक और डिसलाइक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर लाइक और डिसलाइक से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम है, तो प्रेम आपके प्रेफरेंस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने प्रेम में आपको अपनी प्रेफरेंस छोड़नी पड़ जाए तो प्रेमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपका ध्यान करना है, ठीक है, आपको साधना करनी है, और घर वाले आपको साधना करने नहीं दे रहे हैं, तो प्रेम अगर उसके अंदर होगा तो वो अपनी प्रेफरेंस छोड़ देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो नहीं भी छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ जी, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो कोई कुछ कहना चाहे तो इस पे कह सकता है। ये है तो अपने आप में बड़ा टॉपिक, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक। सर मैं यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपने कहा ना कि ज्ञान हो जाता है तो क्या उसके बाद में कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल है? कुछ भी क्योंकि इंट्यूशन जो आती है वहाँ, हाँ, कुछ भी जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति है उसे उसे वो किसी गुरु के संपर्क में आने के बाद या किसी मार्ग पर चलने के बाद जैसे उसका रीजन थोड़ा सा साफ होने लग जाता है लाइफ के बारे में, उसके बाद जो भी उसके अंदर इंट्यूशन आ रही है क्या उसे किसी भी तरीके से समझा जा सकता है? क्या इंट्यूशन को कहीं से भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ उसका नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा? नहीं, नहीं संभव नहीं। ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि बहुत इरेगुलर होगा। इसका कारण है, इसकी एक गहराई है जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों संभव नहीं है। आप देखिए, आपके अंदर अगर मैं 5 लोगों का जो अंदर का कंटेंट है वो मिला दूं तो आपके सारे डिसीजंस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। अतुल जी, आप इस चीज को ऐसे देखिए, आपके अंदर मैं सत्संग में बैठे 10 लोगों का जो कंटेंट है उनके माइंड का आपके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आप किस पल क्या करेंगे। अतुल को प्रिडिक्ट करना आसान है। हाँ, मैं अतुल को प्रेडिक्ट करना आसान है क्योंकि वो एक एंटिटी है। लेकिन अतुल के अंदर 10 लोग को डाल दें, अब स्ट्रक्चर बहुत बदल गया। तो जो ज्ञानी है उसने तो खुद को खो दिया, खुद को तो उसने पूरा खो दिया, और खुद के खोने के बाद उसमें 10 नहीं, उसमें वो जितने चाहे उतने लोगों को समा सकता है, जितने चाहे उतने लोगों को। तो जब ज्ञानी इतने लोगों को समा लेगा तो उसको आप प्रेडिक्ट कैसे कर पाएंगे। मान के चलो कभी वो एक आदमी की इच्छा पे काम कर रहा है, कभी दूसरे आदमी की इच्छा पे, कभी अपनी इच्छा पे, कभी किसी और की इच्छा पे। आपको हर बार ये लगेगा आज तो मेरे गुरुजी गुलाब जामुन खा रहे थे, कल चॉकलेट खा रहे हैं, और आज तो ये मोमोज खाते हुए पकड़े गए। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है आपने, बिल्कुल। और इसीलिए कोई भी जो रियल गुरु होगा ना, उसके आसपास आपको हमेशा कंट्रोवर्सीज मिलेंगी, क्योंकि वो समझ में नहीं आएंगे, संभव ही नहीं है, समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो ज्ञानी होने से पहले ज्ञानी से डायरेक्शन ली जा सकती है, ज्ञानी को ज़्यादा देखना उचित नहीं है, मोटा मोटी पागल ही हो जाएगा, कोई भी पागल हो जाएगा। आप उसके खाने को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि वो रोज क्या खाएगा। उसके जीवन को प्रेडिक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। आप ये नहीं बता सकते वो भोजन क्या करेगा, लेकिन आपके भोजन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि फला आदमी क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, तो मोटा मोटी तो कोई तुक्का मारेगा तो 70-80% सही हो जाएगा कि इस महीने में ये आदमी डोसा तो जरूर खाएगा। तो जीवन बहुत रैंडम है, जीवन बिल्कुल आग की तरह, उसमें ज़्यादा प्रेडिक्शन संभव नहीं है। और अगर फिर वही देखिए सत्संग में फिर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, बोलना बड़ा टेढ़ा। पूरा प्रेडिक्शन भी पॉसिबल है और पूरा प्रेडिक्शन नहीं भी पॉसिबल है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसीलिए ज्ञानी लोग ज़्यादातर एक चीज़ को पकड़ के बताने लग जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अंदर वो डर पैदा होना शुरू हो जाता है कि इसका विपरीत भी तो सत्य है। उसको नहीं बोला तो 4 लोग फिर हाथ खड़े कर देंगे कि टीचर ये भी तो ट्रू है, आपने ये छोड़ दिया। तो बातें कहने में हमेशा छोटा सा भाग आएगा। जैसे अतुल जी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी पत्नी है, वो आपसे पूछ ले आप मुझे कितना प्यार करते हो,
उसको बता पाने में हालत खराब हो जाएगी, जबकि उसके लिए इतना ही काफी है, वो आपकी आंखों से पढ़ ले कि आपकी आंखों में प्रेम है या नहीं है। तो कई बार चीजों के प्रमाण देने में आदमी की हवा टाइट हो जाती है। आई थिंक वो जो आप कह रहे हैं शब्दों में मतलब बयान नहीं किया जाता ऐसा कुछ। हाँ, अगर लेकिन हम सब कुछ बोलना चाहें तो वो नहीं हो सकता। और मैं बस आप जो बोल रहे थे उसके बीच में बस ये कह रहा था कि शायद इंट्यूशन वाला एक कनेक्शन आता है, और इंट्यूटिवली जो चीजें होती हैं उसे कभी भी लॉजिकली या लिंग्विस्टिकली कभी भी बताया नहीं जा सकता या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इंट्यूटिवली नेक्स्ट मोमेंट पर मेरे अंदर से क्या आने वाला है या किसी भी व्यक्ति के अंदर से इंट्यूटिवली क्या आने वाला है। चलो, जैसे आपने ये बात उठाई है अतुल जी, मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप अपने माइंड को ये देख सकते हैं कब वो लॉजिकली फंक्शन कर रहा है और कब इंट्यूशन फंक्शन कर रही है? क्या आप देख सकते हैं? ये कई बार जैसे मतलब कोई भी सिचुएशन होती है उसके अंदर जब जबरदस्ती अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा होता है तो मुझे लग रहा होता है कि वो शायद माइंड से ही माइंड का मतलब एक इंटरेस्टिंग गेम है, कुछ ना कुछ जबरदस्ती क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना। और हाँ, शायद मैं इस तरीके से तो क्लियर नहीं देख पाऊंगा कि माइंड क्या कर रहा है और कौन सा इंट्यूशन कर रहा है। जब नेचुरली सिर्फ लगता है कि ऐसा है, ऐसा होने वाला है या सिर्फ ऐसा है, वो इंट्यूटिवली आ रहा होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़े से टांग खींच देता हूँ हमारे युज फाउंडेशन में ना, ये चीज़ें इस मीटिंग के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपका जो अनुभव है वहाँ तक बोलेंगे तो यहाँ इज्जत मिलेगी, ठीक है? जैसे कोई भी आप शब्द प्रयोग करें, कोई भी बात कहें, तो अगर आप खुद का ज्ञान कहें, चाहे वो गलत भी हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जिनके पीछे का अनुभव हमारी पकड़ में नहीं है, फिर हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे अतुल जी, मैं आपकी टांग और खींचना चाहूँगा इस बात पे, क्योंकि ये सबके लिए है, सिर्फ आपके नहीं, ये सबके लिए है। जैसे अतुल जी ने जो शब्द यूज करे, लॉजिकल माइंड, इंट्यूटिव माइंड, आप जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं अपने अंदर थोड़ा कभी झांक के देखें, जो ये दो शब्द हैं इनके पीछे के अनुभव आपकी पकड़ में आते हैं साफ साफ, कि कब मैं लॉजिकल हूं, कब मैं इंट्यूशन से काम कर रहा हूं। इसको पूछ लें बाकी लोगों से। और यहीं पर, और मैं कभी थोड़ा सा और कुछ मीटिंग्स के बाद बताएंगे कि यहाँ की मीटिंग्स में ये रिपोर्ट कार्ड सबका बनेगा कि आपका कहाँ तक का अनुभव है और कहाँ तक का नहीं है। तो जहाँ तक का अनुभव नहीं है उसके आगे ये मीटिंग यूज़फुल होगी, जो आपको अनुभव है वहाँ तक हम बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सत्संग में सबका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। थोड़े से दिन रुको, थोड़ी जान पहचान हो जाए अच्छे से, फिर एक एक करके रोज़ टेस्ट लेंगे। जैसे मैंने कुछ ज्ञान मार्ग के स्टूडेंट्स को बोल दिया, वो कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे थे और उनका प्रोग्राम पूरा हो रखा है, तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारा तो सर्टिफिकेट मुझे फाड़ना पड़ेगा, तुमने ऐसे सवाल पूछा, ज्ञान मार्ग पूरा होने के बाद तुम्हारा सर्टिफिकेट मुझे फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बातों के पीछे अनुभव का प्रमाण नहीं दिख रहा। तो थोड़े दिन में ये एक्सरसाइज करेंगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे इधर बैठ के ना, सबका रिपोर्ट कार्ड, और ओपन बुक टेस्ट रखेंगे, ओपन बुक टेस्ट। खासकर जो विश्रांति बिंदु पाथ पे हैं, जो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, उनका तो ये होना ही है। बाकी लोगों का मजाक मजाक में कर देंगे। जैसे अगर आज का एक छोटा सा टेस्ट पूछे, हमारे सत्संग में कितने लोग हैं जो अपने लॉजिकल माइंड को और
इंट्यूटिव माइंड की फंक्शनिंग को अलग अलग देख सकते हैं। कितने लोग हैं हमारे सत्संग में कि कब उनका लॉजिकल माइंड काम कर रहा है, कब उनका इंट्यूटिव माइंड काम कर रहा है। Intuitive means लॉजिकल माइंड के बारे में हृदय बोलता है अंदर से, इंट्यूटिव मींस आपका हृदय आपको संकेत देता है। जो इंट्यूशन है क्या उससे बताना पॉसिबल है कि मतलब मुझे कई बार ये लग रहा होता है, आपने कहा है कि आपके अनुभव में क्या है, जब भी मुझे लग रहा होता है कि ऐसा है, जैसे उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आता नहीं है, बट वो है, that is intuition, something which comes naturally from within। उसको मैंने जिया नहीं है। एक्चुअली क्या है, इंट्यूशन आपके अंदर एकदम से इंट्यूशन आ गई, पर वो एकदम से कल्पना भी तो हो सकती है, कोई सपना भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है। आप इंट्यूशन को उसमें से फर्क कैसे करते हैं? तो जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मली जैसा मेरा थिंकिंग है उस तरीके से नहीं आता है, उस तरीके से समझना नहीं होता है। कोई होता है ना कि 2 + 2 = 4, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी नहीं आ रहा होता। मैं इस देखिए, इंट्यूशन जो है आपकी, उसका जो अनुभव है, उसका अनुभव अगर आपको साफ साफ पता लग जाए तो आपको इन मीटिंग्स में आने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपका पूरा सिस्टम जो इंट्यूशन की फॉर्म में आपको जो उत्तर देता है वो उत्तर सही होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के माइंड इतने मिक्स होते हैं कि अपनी इंट्यूशन को पकड़ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या है, क्यों है, कहां से आ रही है, कैसे फंक्शन करती है। तो इसका अनुभव आप जब तक नहीं लेंगे, वो बड़ा जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मान के चलो सारे गुरु मर गए, सब कुछ मर गया, तो भी तो आपको अंदर से कोई गाइड करने वाला है ना। आप रेगिस्तान में खड़े हैं, चारों दिशाओं में एक जैसा दिख रहा है और बस आपके पास 1 घंटा चलने की शक्ति बची है। अंदर से अगर आप इंट्यूशन का उस पल में यूज कर पाए तो आप ठीक ही होंगे। आपको गलत होना लगभग असंभव है। लेकिन हमारे जिन भी लोगों के अंदर ये लाइक डिसलाइक का प्रोसेस, ये प्रेफरेंस का प्रोसेस, ये संदेह का प्रोसेस, जो डाउट का प्रोसेस जो चलता है, जब तक ये चलते हैं तब तक आपका इंट्यूशन ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। तब तक वो धोखे में ही रहते हैं कि कभी 100 में से एक बार इंट्यूशन आ गया तो सच हो गया। असल में अगर आप मेरे से पूछें, जब तक इंट्यूशन माइंड अच्छे से डेवलप ना हो तब तक सत्संग लेना भी बड़ा मुश्किल है। तब तक मीटिंग भी लेना बड़ा मुश्किल है किसी की। ठीक है, तो प्रतीक जी, क्या ये इंडिविजुअल डिपेंड नहीं करता है कि किसी को हो भी सकता है, जैसे हिमांशु जी ने लिखा है मैसेज पर कि ये व्यक्तिनिष्ठ होता है, तो शायद उचित अनुचित इंट्यूशन लॉजिकल ये इंडिविजुअली डिपेंड करता नहीं। माइंड में तो इसको डेवलप किया, कहाँ लिखा है? नहीं, हिमांशु जी ने सिर्फ लिखा है कि उचित अनुचित, मतलब शिष्टाचार है शायद उन्होंने लिखा। अच्छा। लेकिन मैं उसी को जोड़ रही हूँ कि इंट्यूशन है, उचित है, अनुचित है, सही है, गलत है, ये क्या इंडिविजुअली डिपेंड नहीं हो सकता है, व्यक्तिनिष्ठ किसी का हो भी सकता है। हाँ बिल्कुल, कि अगर हिमांशु जी का है तो ऐसा कोई, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ कि उनका ये नियम उनके जीवन के प्रति कोई गलत है, लेकिन मैं सिर्फ उसकी वो साइड दिखा रहा हूँ कि उनका तो खाली हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ऐसे। मैं बस उनकी ये साइड दिखाना चाह रहा हूँ कि जीवन इसको तोड़ सकता है, तो टूटने के लिए भी तैयार रहें। जब हम अपने लिए नियम बनाते हैं
तो नियम को तोड़ने की तैयारी साथ में रखें, नहीं तो दर्द होता है। आपने अपने लिए नियम बनाया कि मुझे सलाद चाहिए ही चाहिए रोटियों के साथ। किसी दिन सलाद नहीं मिला तो जान थोड़ी ले लेंगे खाना बनाने वाले की। जी जी हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब आदत जो है वो बड़ा डेंजरस चीज है। विवेक से चलना चाहिए, होश से चलना चाहिए। आदत वगैरह तो आपको चोट खिला देगी जीवन में। बहुत ज्यादा चोट देती है आदत तो, किसी भी तरह की आदत हो फिर वो। जया जी कह रहे हैं जिसने स्वयं के भीतर की अशुद्धियां देख ली उसके भीतर दूसरों के प्रति करुणा सहज प्रकट होती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा लिखा है। अगर हमने अपने अंदर की अशुद्धियां देख ली तो दूसरे के प्रति करुणावान होना बड़ा सहज है। सीधी सी बात है, मेरे क्या 100 में से 100 नंबर आए हैं हमेशा। तो मैं अपने बच्चों को 100 लाने के लिए मार थोड़ी सकता हूँ। ये वो वाली बात है भाई, मेरे कभी खुद 100 में से 100 नहीं आए और मैं बच्चों को अगर पीट रहा हूं कि नहीं तुम्हारे 100 क्यों नहीं आए, तो मैं अपनी मूर्खता का ही प्रमाण दे रहा हूं। फिर ए डॉन, मुझे तो इनका नाम भी नहीं लेना आ रहा है, नाराज ना हो जाए। सर जब ध्यान करते हैं तो फिर कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाती है, वासना वगैरह भी परेशान नहीं करती। बट जब 1-2 दिन ध्यान ना करें फिर वापस उसी स्थिति पर आ जाते हैं। हमेशा उसी कॉन्शियस में कैसे बने रहें? आपके सवाल का जवाब दूसरे तरीके से दिया जा चुका है। जैसे हिमांशु जी कह रहे थे शिष्टता के साथ हमेशा कॉन्शियसनेस में बने रहें, ये एक मैं क्या कहूं, आदत कहूं, ये ड्रामा है। आप हमेशा कॉन्शियसनेस में बने रहें, ये एक ड्रामा है। ये जो सवाल है ये ऐसा सवाल है, ये हल कैसे होगा, मैं उसकी तरफ आपको इशारा कर देता हूं क्योंकि आपने पूछा है कि कैसे उसमें बने रहें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे पल होते हैं जब आप कॉन्शियसनेस में नहीं होते, जिसको भी आप अपना अनुभव कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पल हैं तब आप कॉन्शियसनेस में नहीं होते। उन पलों को पहले तो स्वीकार कीजिए। वो भी इसीलिए पता चल रहे हैं क्योंकि कॉन्शियसनेस है। एडोन जी, आपसे ऑडियो पे बात हो सकती है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप देखिए, जब आप डाउन जा रहे हैं वो भी आपको चेतना के थ्रू ही तो पता चल रहा है। कॉन्शियसनेस है लेकिन उतनी हाई लेवल पे नहीं रह पा रही है, लो लेवल पे दोबारा आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात देखिए, चेतना को ऊपर बनाए रखने के लिए जीवन का एक लाइफस्टाइल चाहिए। ये तो आपने देख लिया होगा अभी तक ध्यान करते हुए। जी। एक प्योरिटी चाहिए, अंदर कचड़ा नहीं चाहिए, प्राण अच्छे चाहिए, खाना पीना सात्विक चाहिए, पूरा एक जीवन स्तर है ना। जी। क्या आप सिगरेट पी के कॉन्शियसनेस में ऊपर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे देश में तो शंकराचार्य जी पूरा दारू का लोटा पी गए थे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं इसमें 2-3 बारीकियां हैं जो आपका मन अभी देख नहीं पाया है, और ज्यादा जूम करके इस प्रश्न पे देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा कॉन्शियसनेस में कैसे बने रहें? आप युज फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एक प्रवीण सिंगापुर से हैं, गूगल में है, उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा था। शायद उसका टाइटल भी यही है उस वीडियो का कि हमेशा 24 घंटे जागरूकता में कैसे बने रहें।
तो उसमें बड़ा विस्तार से बताया गया था। मैं आपको उसका लिंक दे देता हूं। उनका वो बड़ा सही सवाल था। ये बहुत लोगों का सवाल होता है ये कि 24 घंटे कैसे बने रहें, और ज्ञानी कहेगा हमें ऐसा पल नहीं मिलता जब चेतना ना हो, तो ऐसा संभव कैसे है? ये मन के स्तर पर एक अज्ञान है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक अज्ञान है, और वो अज्ञान हटते ही आपका जीवन एक्सप्लोड कर जाएगा। उसके बाद आप, मैं एडोन जी बार बार इसको प्रश्न की महत्व आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अनुभव के स्तर पर, आपका जीवन एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोड, राइज नहीं, एक्सप्लोड करेगा पूरा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का हल संभव ही तब है जब आप अपने अंदर पूरा सरेंडर कर देंगे। उससे पहले ये संभव ही नहीं है। मैं लिंक दे रहा हूं, ये देखिए, मैंने एडोन जी आपको लिंक दे दिया है। आप इस पूरी एक बार वीडियो को देख लें, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का इसमें उत्तर है। ठीक है? और ठीक है। हम लोग ऐसे वीडियो बनाते ही तभी हैं जब किसी को जरूरत होती है, उससे पहले तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समर्पण, आप समर्पण के दरवाजे पे खड़े हैं, आप ये चीज समझें। एडोन जी, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप समर्पण के दरवाजे पे खड़े हैं। पूर्ण समर्पण के साथ ही आप 24 घंटे चेतना में रहने लग जाएंगे। लेकिन पूर्ण समर्पण भी घटता है, वो आपके हाथ में है नहीं। आप एडोन जी, आप ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। पूर्ण समर्पण के साथ 24 घंटे की चेतना घटित होती है, लेकिन पूर्ण समर्पण खुद एक हैपनिंग है। वो एफर्ट से नहीं होती, वो एफर्टलेस होने पे होती है। जब आप निष्प्रयास हो जाएंगे वो तब होगी घटना। आप अगर इस पल में निष्प्रयास हो जाएंगे तो इस पल के बाद से आपकी चेतना 24 घंटे रहेगी। लेकिन आप चाह के निष्प्रयास नहीं हो सकते, वो घटेगा। तो मतलब हाँ, तो आपकी करीब करीब घटना ऐसे है कि आपने गर्लफ्रेंड को प्रपोजल दे दिया है, अब आप उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे स्वीकार किया या नहीं किया। ये करीब करीब वैसा है कि भक्त ने परमात्मा को चिट्ठियां भेज दी हैं लिख लिख के, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन परमात्मा कब रिस्पोंड करेगा वो तो भाई जाने। तो आप ध्यान रखें, आपको प्रयास नहीं छोड़ना है। निष्प्रयास होने के लिए प्रयास नहीं छोड़ना है। निष्प्रयास होने के लिए प्रयास को 100% कर देना है। सब कुछ दांव पे लगा दो इस प्रश्न को हल करने के लिए। ये इतना बड़ा प्रश्न है, आप चाहे 1 महीना कहीं छुट्टी लेके चले जाएं तो भी छोटा है। इसका जो फल है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं फल पे ज़्यादा जोर दूंगा तो समर्पण उतना आपसे दूर होता चला जाएगा। क्यों? आप फल को तरफ देखने लग जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, इस प्रश्न का मैं आपको एक और सूत्र दे देता हूं पकड़ने के लिए वीडियो के अलावा। इसको पकड़ने की कोशिश करें कि आप की चेतना डाउन कब जाती है। उस पल को अगर आपने पकड़ लिया तो आप हंसेंगे। आप ये हंसेंगे देख के कि मेरी चेतना तो कभी डाउन जाती ही नहीं। चेतना तो बिन बाती का तेल है। आपके अंदर अज्ञान है इस प्रश्न में, उसको मैं भाषा से नहीं तोड़ सकता। उसको आपको मनन करना पड़ेगा। जूम करो, देखो, ये देखो मेरी चेतना किस पल में डाउन जाती है, वहां पर इसका उत्तर है। और आप जैसे ये चीज देखोगे आप हंसोगे और आपको उत्तर यही मिलेगा, मेरी चेतना तो कभी डाउन जाती ही नहीं है।
मैं सोचा कैसे मेरी चेतना डाउन जा रही। तो मैं अशिष्टता का उपयोग करते हुए ये बताना चाह रहा हूं, आपके मन ने आपका फुद्दू बनाया, ठीक है ए डॉन जी। अच्छा जी। इतना तगड़ा फुद्दू बनाया है जिस मन पे आप विश्वास कर रहे हैं वो मन आपका फुद्दू बना रहा है, क्लियरली बना रहा है, ठीक है। तो आपको अपने मन की चालाकी को पकड़ना है। ये प्रश्न अज्ञान से पैदा होता है, तो थोड़ा सा और मनन कीजिए, थोड़ा सा और इसको पकड़ने का प्रयास कीजिए और झटके से पकड़ में आएगा। बने रहिए, बैठे रहिए 2-3 घंटे। मैं देखता हूं आज मेरी चेतना कैसे नीचे जाती है, मैं देखता हूं और जैसे ही आप देखना चालू करेंगे वो फिर से ऊपर आ जाएगी। सही पकड़ है, जैसे ही देखते हैं ना ऊपर आ जाती है चेतना। तो ये वही बात होगी कि मेरे बच्चे के नंबर कम आए हैं, पर वो नंबर कम आए हैं कैसे पता चला? पड़ोस के बच्चे के नंबर देख के। तो आपने डॉन जी कहीं से ऐसा भ्रम पाल लिया है कि ऐसा ऐसा होता है, तो पड़ोसी के बच्चे के नंबर देख लिए और अब खुद को आप डाउन देख रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है मैं आपको कुछ हिंट दे पाया होऊंगा आगे चलने के लिए। बाकी वीडियो में वो बड़ा अच्छे से बताया है, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। अच्छा, जया जी कह रहे हैं प्रेफरेंस कम्स फ्रॉम अ माइंड पैटर्न विच इज बेस्ड ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जया मिश्रा जी, आप ज्ञान मार्गी हैं क्या? आप बार बार पैटर्न शब्द का यूज कर रहे हैं, ऐसा है क्या? आप बोल के मुझे बताएं। हाँ जी, वो ज्ञान मार्गी से ही है, वो शायद बोल नहीं पाती है। अच्छा अच्छा, मार्गी। ठीक है, इसीलिए ऐसी सटीक डेफिनेशन आ रही। प्रेफरेंस कम्स फ्रॉम अ माइंड पैटर्न विच इज बेस्ड ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वेरी गुड। वॉच इट एज इट इज, अदरवाइज इट विल क्रिएट अनदर पैटर्न। करेक्ट। हिमांशु जी कह रहे हैं अच्छाई बुराई मानवता पशुता सभी के संबंध में तथ्यों के आधार पर सत्संग भी किया जा सकता है और चर्चा भी, किंतु क्या ओहो, कैसे चला गया पता ही नहीं लगा। ये तो इधर उधर चला गया था, ये तो पता नहीं कैसे कट गया। ठीक है, अब सब लोग जुड़ जाएं। अच्छा अच्छा, अब आवाज आ रही होगी, पता नहीं कैसे कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। हाँ अपने एक ही दम बंद हो गया था। ठीक है, हिमांशु जी का प्रश्न ले रहे थे। प्रश्न मतलब इनकी बात, अच्छाई बुराई मानवता पशुता सभी के संबंध में तथ्यों के आधार पर सत्संग भी किया जा सकता है और चर्चा भी, किंतु क्या कोई भी बैठक या चर्चा में अशिष्टता को स्थान मिल सकता है या अनुशंसा की जा सकती है? क्योंकि यदि वहाँ अशिष्टता है तो फिर वहाँ चर्चा नहीं अपितु विवाद है और झगड़ा है, इससे बचना ही उचित है। किसके उससे आवाज आ रही है थोड़ा सा? छोटे छोटे टुकड़े। तो हिमांशु जी, आप एक स्तर पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी जो बात है सामाजिक स्तर पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन ये मीटिंग्स हैं ही उस ज्ञान के लिए जो समाज आपसे छुपा के रखता है। तो मेरा
किस कंटेक्स्ट में, किस रेफरेंस में मैं आपको बात कह रहा हूं कि हमारे यूथ फाउंडेशन की जो ये मीटिंग्स हैं, ग्रुप मीटिंग्स हैं, इसमें शिष्टता अशिष्टता का कोई महत्व यहाँ नहीं है। हम सारे शिष्टता से बात करेंगे, पर अगर अभी मान के चलो कौन है, कोई दोस्त है इधर, कोई भी अगर यहाँ गाली भी देना चाहे तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, हंस देंगे बाकी सब लोग। वो गाली लेने वाले के ऊपर है ना, क्योंकि मैं कहना ये चाह रहा हूं, गाली किसने दी और किसने ली, वो लेने वाले की भी तो जिम्मेवारी है। हिमांशु जी उपस्थित नहीं है। यहाँ औघड़ सत्संग होंगे। औघड़ सत्संग क्या होते हैं राजीव जी? मेरी हिंदी कमजोर है लग रहा है। वही जो आप बता रहे हैं ना कि जो सामान्य शिष्टाचार या फिर जो शब्दों की सीमा के अंदर रह के जो हम बात करते हैं, वहां से थोड़ा सा बाहर हटके। अच्छा, बस वैसा है। हाँ, तो यहाँ औगड़ बाबा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ भी किसी को बोल देते हैं। अघोरी जो होता है कभी भी कुछ भी अघोरी अलग होते हैं, औगड़ अलग होते हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों मिले जुले हैं, ठीक है आपकी बात। एक ही से मतलब रिलेशन रखते हैं। औगड़ मतलब मुंह में आया बोल दिया, ऐसा। अच्छा, हाँ, ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग और तोतों का विरोध होता है आपस में, ये मैंने देखा है। ज्ञान और अज्ञानी में सबसे अच्छे मुझे ये औघड़ ही लगेंगे। फिर कहीं ज्ञानी बैठे हों, बीच में 50% ज्ञानी होने चाहिए, 50% औघोड़ी, तो फिर जो सत्संग में जो रहेंगे। सॉरी, हाँ, बताइए। एक कबीर के कुछ वीडियो है मेरे पास, उसमें से एक यूपी के गांव की एक बुढ़ी माई है, और उसका बहुत सुंदर उसने कबीर का किया है। और साथ में उसके कुछ ऐसे वाक्य हैं जो शायद मैं यहाँ डाल दूं तो फिर मतलब लोग फिर सत्संग के नाम को ही बैन कर देंगे अपने फोन के अंदर। नहीं, आप जरूर डालिए। और बड़ा हाँ, मैं डाल देता हूँ ढूंढ के उसको। हम चाहेंगे कि लोग वही होता है। हाँ, वही औगड़पना होता है कि शब्दों की जो सामाजिक मर्यादा है उससे भी आपको परे जाना है। क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूचर में कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे। यहाँ पर जरूरी चीज है कि आपके मन पर नियंत्रण हो। आप निर्देश समझिए, ये किस दिशा में बात करी जा रही है। ये जो अशिष्ट करने की जो स्वतंत्रता है, वो इसलिए नहीं है कि बस आपको मजे आ रहे हैं। वो स्वतंत्रता ये चेक करने के लिए है कि आपके स्वयं के मन पर नियंत्रण कितना है। उसका एक हायर पर्पस है। अगर आप गाली देने से चिटक जाते हैं, अगर आप गलत बोलने से आपको कोई नाराज कर दे रहा है, कोई आपको इरिटेट कर दे रहा है, तो आप कहाँ के सत्य के खोजी हुए, आप तो ऐसी विंडो शॉपिंग कर रहे हैं फिर आध्यात्मिक मार्गों की। तो ये उसका हायर पर्पस है। क्या विंडो शॉपिंग ना करें, असली अध्यात्म में आप अपने मन के नियंत्रण की तरफ कदम उठाएं। और उसको चेक करने के लिए औघड़, जो जैसे राजीव जी कह रहे थे, औघड़ जैसे बाबा लोग चाहिए। ज्ञानी बहुत मजे से कुछ बोल रहा है और बीच में उसने कह दिया ये तो झूठ बोल रहा है। अगर ज्ञानी में अकड़ होगी तो बेचारा फंस जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उचित अनुचित पूर्णतया व्यक्तिनिष्ठ है। बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु जी सही कह रहे हैं। इट्स ऑल, अतुल जी कह रहे इट्स ऑल नेचुरल व्हेन द कंफ्यूजन इज क्लियर। राजीव जी कह रहे हैं संवाद में अशिष्टता कभी भी ठीक नहीं होती, परंतु अशिष्ट शब्दों का उपयोग किस प्रयोजन से किया जा रहा है, इसे समझकर प्रतिक्रिया अशिष्ट या शिष्ट है या रोक ली गई है या नहीं, मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, यही हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अशिष्टता का उपयोग आपको चेक करने के लिए किया जा सकता है कि आपके मन पर नियंत्रण है या नहीं है। किसी के कहने से अगर आपके माइंड में कुछ प्रोसेसेस अगर चल पड़ते हैं तो आप अभी गुलाम की श्रेणी में आएंगे,
और आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। इंट्यूशन मतलब अंतर्मन, बिल्कुल ठीक। फिर जया मिश्रा जी कह रहे हैं निष्प्रयास के लिए प्रयास को 100% बढ़ा देना। थोड़ा एक और दो उदाहरण से बताइए। बहुत ही विरोधाभासी वाक्य है। विरोधाभासी है। इसको आप जया जी ऐसे समझ सकते हैं, आपकी मुट्ठी निष्प्रयास कब होगी? जब आप इसे पूरा भींच देंगे, पूरा जोर लगा के रखिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद आपकी मुट्ठी खुद कह देगी मैं नहीं कर सकती, वो अपने आप खुल जाएगी। उसे निष्प्रयास कहा जाता है। आपका प्रयास नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। एक बीज से जब पौधा निकलता है तो वो निष्प्रयास निकलता है, अपने आप धीरे धीरे धीरे। प्रकृति जो उसका नैसर्गिक, जो उसका इनहेरेंट, जो उसकी गति है, उसको जब वो पा लेता है तो वो निष्प्रयास होता है। और ये अनुभव से ही समझ में आ सकता है। ये अनुभव से ही समझ में आ सकता है कि निष्प्रयास क्या होता है। शब्दों से नहीं समझ आएगा। किसी को निष्प्रयास को समझना, मैं कहूंगा आप उतनी दौड़ मारें जितना आपके अंदर दम है, ठीक है? फिर थक के गिर जाएंगे। वो जो थक के गिरना होगा वो निष्प्रयास गिरेंगे, ठीक है? जब आप थक के गिरेंगे तो निष्प्रयास गिरेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूं। हिमांशु जी उपस्थित नहीं है, क्या बात है? तो में तो विवाद होता ही है। हाँ जया जी, अतुल जी थोड़ा म्यूट कर लेंगे, शायद आवाज। जया मिश्रा जी कह रहे हैं कि तोतों में विवाद होता ही है। तोते बेचारे विवाद ही कर सकते हैं, के साथ दिक्कत यही है। ये यहाँ मीटिंग्स में लोग बड़े बड़े क्वेश्चन उठा देते हैं। तोते थोड़े से डेंजरस ही होते हैं। सारी दुनिया तोतों के कारण ही परेशान है। तोते कौन होते हैं? हमारे सत्संगों में या ज्ञान मार्ग में, इन सब में तोते कौन है? जो शब्द जिनको पता है पर पीछे का अनुभव नहीं है, उनको फिर मैं तोते की कैटेगरी में रख देता हूं। तोते छोटी क्लास के लिए अच्छे हैं, एक एक टॉपिक समझाने के लिए, पर तोते जब बड़ा रोल निभाने लग जाते हैं तो बहुत डेंजरस रास्ते पे ले जाते हैं बाकी लोगों को, क्योंकि आधा ज्ञान होता है ना। और अंग्रेजी वाला तोता तो और भी अच्छा लगता है, ये सही बोल रहा है। बड़ी दिक्कत हो जाती है जया जी। तो तोतों को आइडेंटिफाई करके थोड़ा चुप कराना थोड़ा जरूरी भी होता है, क्योंकि तोतों का विकास रुक जाता है ना। तोता होने से विकास रुक जाता है। यहाँ की मीटिंग्स में सबको सब कुछ बोलने का अधिकार है, जो कुछ बोले सब कुछ बोले, लेकिन आपके बोलने को चेक किया जा सकता है। आपके बोलने के पीछे आपके अनुभव का प्रमाण है कि नहीं, उसको जांचा जा सकता है, जो कि आने वाले समय में जांचेंगे ही। तो वहां पर तोते आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है दूसरे लोग तोते दिख रहे हैं, हम लोग खुद बहुत तोते हैं। हमारे देश में आत्मा शब्द का उपयोग ऐसे किया जाता है जैसे सभी को पता है आत्मा क्या है। प्रेम इतना छोटा सा शब्द है, यहाँ इतने लोग जुड़े हैं सत्संग में, कितनों को सच में प्रेम है? प्रेम शब्द छोटा सा है, लेकिन प्रेम में होना बिल्कुल दूसरी बात है, बिल्कुल दूसरी बात। तो किसी से मुझे मिलने का बहुत कम समय होता है तो मैं इतना ही पूछ लेता हूँ, आपको प्रेम उपलब्ध हो गया जीवन में? वो बेचारे ऐसे दिखते हैं चेहरे की तरफ के पता नहीं गाली दे दी क्योंकि सबकी शादियां भी हो रखी होती हैं, सबकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं,
और अगर उनसे पूछ लो प्रेम उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर क्या कर रहे थे अभी तक? तो गाली देने से अच्छा है आप ऐसे पूछ लें किसी से भी कि आपको प्रेम उपलब्ध हो गया है, और उस व्यक्ति का शादी हो जाए तो प्रेम नहीं होता है क्या? बाकी सब लोगों की हो रखी है वो देखें शादी के बाद कितना प्रेम बढ़ा। ज्यादातर मतलब ये हंसी मजाक की बात है, प्रेम से शादियां भी होती हैं और शादी में के बाद भी प्रेम होता है, पर प्रेम एक अलग ही घटना है। ओके सो आज फिर किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज इस चर्चा को विराम देते हैं। हाँ जी, समय भी हो गया है। ठीक है, प्रणाम एवरीवन। जी प्रणाम सभी को, धन्यवाद आप सभी का।